Hello everybody, welcome back to English classes with Mukhtar sir. I'm back and today I'm gonna take up relative classes. Today we will see what relative classes are. Okay, fine. Let me tell you people, I have decided to divide this particular topic into two parts, part first and part second. Since it becomes rather impossible later on to upload videos of larger size, hence I have decided to make rather short video clips. Hence, I have divided this particular topic into two parts, part first and part second. At the moment, we are going to talk about part first. And in part first, I will be telling you people about the definition and all introductory information about relative classes. We'll see what a relative class is and what are the essentials that we need to know in order to proceed with the topic relative classes. Fine. Let's first define a relative class. What is a relative class? A relative class happens to be a dependent class. A dependent class. And remember, a relative class is a dependent class. That dependent class or such a dependent class which is being introduced by a relative pronoun. By RP, I mean a relative pronoun. A dependent class being introduced by a relative pronoun, and after being introduced to the relative pronoun, a dependent class, such a dependent class being introduced to the relative pronoun is joined with an independent class. Is joined with an independent class. As such, we have a dependent class introduced with the relative pronoun, and this particular dependent class introduced with the relative pronoun, remember, is also known as a subordinate class. Subordinate class. Hence, a dependent class introduced with the relative pronoun joined with an independent class, and which further gives us information. Which further gives us information about an antecedent. Gives us information, but information about whom? It gives us information about an antecedent. About an antecedent. Hence, a relative class is a dependent class, or thus called a subordinate class, joined with an independent class that gives us information about the antecedent. But look at this particular class, the dependent class, the subordinate class. This happens to be a dependent class introduced with a relative pronoun. By introduced, we mean a dependent class that starts, okay? A dependent class that starts or that begins with a relative pronoun, which is joined with an independent class, and which after having been joined with the independent class gives us information about the antecedent. Such a dependent class is called a relative class. Okay, now a relative class is a dependent class introduced with a relative pronoun, and which after having been joined with the independent class gives us information about the antecedent. Let me simplify it in Urdu. एक रिलेटिव क्लास क्या होता है? एक रिलेटिव क्लास हमारा एक डिपेंडेंट क्लास होता है, एक ऐसा डिपेंडेंट क्लास जो शुरू हो, जो इंट्रोड्यूस किया जाए, जो स्टार्ट हो. एक डिपेंडेंट क्लास जो इंट्रोड्यूस किया जाए यानी जो स्टार्ट हो. एक डिपेंडेंट क्लास जो स्टार्ट हो, इंट्रोड्यूस किया जाए विद रिलेटिव प्रोनाउन. अगर हमारे पास एक ऐसा डिपेंडेंट क्लास है जो स्टार्ट हो रहा है विद रिलेटिव प्रोनाउन, with an RP, that is a relative pronoun. Okay, a dependent class that's being introduced, एक ऐसा dependent class जो शुरू हो हमारे relative pronoun से. relative pronoun से शुरू होने के बाद इस dependent class को join किया जाता है with an independent class. ये dependent class join होता है एक independent class के साथ. अब अगर हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लास है जो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हुआ है, उसके बाद अगर वो इंडिपेंडेंट क्लास के साथ ज्वाइन होता है, ज्वाइन विद एन इंडिपेंडेंट क्लास. ओके, अगर हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है, रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हुआ है, इंडिपेंडेंट क्लास के साथ ज्वाइन होता है, इंडिपेंडेंट क्लास के साथ ज्वाइन होने के बाद अगर ये हमें इंफॉर्मेशन दे,
आफ्टर हैविंग बीन ज्वाइन, जब हमने इसे ज्वाइन किया इंडिपेंडेंट क्लास के साथ। अगर इसके बाद इफ इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन, अगर ये हमें इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन इंफॉर्मेशन किसके बारे में, अगर ये इंफॉर्मेशन देता है हमें, लेकिन अगर ये हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट एन एंटीसीडेंट, एक एंटीसीडेंट के बारे में, एक एंटीसीडेंट के बारे में, तो ऐसे डिपेंडेंट क्लास को हम रिलेटिव क्लास कहते हैं। एक डिपेंडेंट क्लास होगा, रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होगा। ख्याल रहे, एक डिपेंडेंट क्लास जो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है इज आल्सो नोन एज सबऑर्डिनेट क्लास, इसे हम सबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं। यानी हमारा जो रिलेटिव क्लास है ये असल में एक सबऑर्डिनेट क्लास होता है, एक डिपेंडेंट क्लास जो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो। ये सबऑर्डिनेट क्लास एक इंडिपेंडेंट क्लास के साथ ज्वाइन होता है और उसके बाद ज्वाइन होने के बाद गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटीसीडेंट, ये हमें एंटीसीडेंट के बारे में जानकारी देता है। नाउ व्हाट वी नीड टू नो इज द फैक्ट दैट व्हाट आर रिलेटिव प्रोनाउंस, ये रिलेटिव प्रोनाउंस क्या है, एंड व्हाट इज एन एंटीसीडेंट, ये एंटीसीडेंट क्या है। आफ्टर हैविंग लुक्ड एट दीस टू थिंग्स, जब हम इन दो चीजों को देख लेंगे, वी विल गेट बैक टू आवर रिलेटिव क्लास, हम वापस आएंगे रिलेटिव क्लास पे। ओके फाइन, लेट मी फर्स्ट टेल यू पीपल about relative pronouns and antecedent. Relative pronouns are actually pronouns. Relative pronouns असल में pronouns हैं हमारे पास, like our interrogative pronouns, हमारे interrogative pronouns की तरह। Interrogative pronouns का काम होता है introduce करना एक interrogative statement को, लेकिन वही interrogative pronouns eight times do a different function, do a different job। वही इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कभी कभार कोई और काम करते हैं, वो काम नहीं करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस करने का, बट एट टाइम्स डू ऑल टुगेदर ए डिफरेंट जॉब, वो कभी कभार एक मुख्तलिफ काम करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस की हम बात कर रहे हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस, व्हाट आर रिलेटिव प्रोनाउंस? Relative pronouns are those pronouns which do the job of joining, जो join करने का काम करें। For example, we had to join classes, मसलन हमें classes join करने हैं, और अगर classes join करने के लिए हम कोई pronoun इस्तेमाल करेंगे, if a pronoun is used to do the job of joining, join करने का काम करने के लिए, such pronouns are called relative pronouns। ऐसे ही pronouns को relative pronouns कहते हैं। We have got 10 relative pronouns which include all question words plus that। सो हमारे पास 10 रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, यानी 10 ऐसे प्रोनाउन हैं जो ज्वाइन करने का काम करते हैं क्लासेस एक्सेट्रा को, और ये जो प्रोनाउंस हैं जो ज्वाइन करने का काम करते हैं, इन्हीं प्रोनाउंस को रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, दीज आर 10 इन नंबर, हमारे जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं आर 10 इन नंबर, ये 10 हैं, विच इंक्लूड, जिनमें आते हैं ऑल क्वेश्चन वर्ड्स प्लस दैट, सारे क्वेश्चन वर्ड और दैट, लाइक हुज, होम, व्हिच, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, व्हाट एंड दैट। दीज आर आवर 10 रिलेटिव प्रोनाउंस। ये हमारे 10 रिलेटिव प्रोनाउंस हैं which do the job, which do the function of joining। इनका काम होता है ज्वाइन करना, ये ज्वाइन करने का काम करते हैं। एंड whenever a question word, जब कभी भी एक क्वेश्चन वर्ड को इस्तेमाल किया जाता है in order to do the job of joining, ज्वाइन करने का काम करने के लिए, a question word is no longer called an interrogative pronoun, तब हम इसे interrogative pronoun नहीं कहते हैं, we rather call it a relative pronoun, हम इसे एक relative pronoun कहते हैं, and not an interrogative pronoun, remember। And this particular demonstrative pronoun, that whenever this particular pronoun does the job of joining, जब कभी भी that काम करता है join करने का, is no longer called a demonstrative pronoun, it's rather called a relative pronoun। Hence relative pronouns are those pronouns which do the job of joining clauses। Okay, अगर ये clauses join करने का काम करें तो ऐसे ऐसे pronouns को हम कहते हैं relative pronouns। और relative pronouns हमारे पास 10 है, which include all question words, जिसमें हमारे सारे क्वेश्चन वर्ड आते हैं प्लस दैट, और उनके साथ दैट, हु, हुज, होम, व्हिच, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, व्हाट एंड दैट। ओके, दीज आर आवर 10 रिलेटिव प्रोनाउंस। तो ये था कि रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एन एंटीसीडेंट। एक एंटीसीडेंट किसे कहते हैं? So, what is an antecedent? An antecedent always happens to be a noun or a pronoun. It can be a noun or a pronoun. Such a noun or a pronoun that's being used, such a noun or a pronoun which is used before a relative pronoun. Which is used before a relative pronoun.
such a noun or a pronoun is called the antecedent. Hence antecedent is a noun or a pronoun which is used before a relative pronoun, which is being used before a relative pronoun. Antecedent हमारा एक noun या एक pronoun होगा, लेकिन ऐसा noun या ऐसा pronoun जो इस्तेमाल किया जाता है किसी relative pronoun से पहले, जो किसी relative pronoun से पहले इस्तेमाल हो, ऐसे noun या pronoun को ही antecedent कहते हैं. Now we will get back to the definition of relative clauses. Let's get back. A relative clause is a dependent clause. A dependent clause, such a dependent clause which is being introduced with a relative pronoun. Okay, which is being introduced with a relative pronoun, which is further being joined with an independent clause. Which is further being joined with an independent clause. And that particular dependent clause introduced with a relative pronoun, now after having been joined with an independent clause, which gives us information, but which gives us information about what? Which gives us information about an antecedent. Such a dependent clause or a subordinate clause is called a relative clause. एक dependent clause जो relative pronoun से शुरू होगा, relative pronoun से शुरू होने के बाद remember ये हमेशा join किया जाता है एक independent clause के साथ, लेकिन independent clause के साथ join होने के बाद ये जो dependent clause या subordinate clause होता है gives us information about the antecedent. ये हमें antecedent के बारे में information देता है. Let's consider this example. The girl who saved the baby was awarded. Now we have got a sentence which reads like this: the girl who saved the baby was awarded. Okay, fine. Now I'm gonna divide this particular sentence into two parts, like who saved the baby, which happens to be the dependent clause, and the remaining part of this sentence, the girl was awarded. The girl was awarded. Okay, तो हमारे पास एक एग्जाम्पल, एक सेंटेंस है, द गर्ल हु सेव्ड द बेबी वाज अवॉर्डेड. मैंने इस सेंटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. एक पार्ट इसका है हु सेव्ड द बेबी, हु सेव्ड द बेबी, और दूसरा पार्ट इस स्टेटमेंट का यानी बचा हुआ हिस्सा इस सेंटेंस का है द गर्ल वाज अवॉर्डेड. अगर इफ दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कंसर्न्ड, अगर इस पार्ट की हम बात की जाए, इसको अपने जहन में लिया जाए, द गर्ल वाज अवॉर्डेड, दिस पर्टिकुलर पार्ट हैपेंस टू बी द इंडिपेंडेंट क्लास ऑफ दिस सेंटेंस. ये इस सेंटेंस का इंडिपेंडेंट क्लास है. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट, अगर इस पार्ट की बात की जाए हु सेव्ड द बेबी, दिस हैपेंस टू बी द डिपेंडेंट क्लास. यही है हमारा डिपेंडेंट क्लास. हु सेव्ड द बेबी, हु सेव्ड द बेबी, हु सेव्ड द बेबी. इट सीम्स एज इफ समथिंग इज येट टू कम. इट डज नॉट कन्वे कंप्लीट थॉट. ये मुकम्मल मीनिंग नहीं देता है. हेंस दिस इज द डिपेंडेंट क्लास. ये डिपेंडेंट क्लास है. बट हैव अ लुक, दिस डिपेंडेंट क्लास हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय रिलेटिव प्रोनाउन. ये जो डिपेंडेंट क्लास है रिलेटिव प्रोनाउन हु से स्टार्ट हुआ है. ओके फाइन. नाउ दिस इज द सबऑर्डिनेट क्लास और अ डिपेंडेंट क्लास इंट्रोड्यूस्ड बाय रिलेटिव प्रोनाउन. तो ये जो डिपेंडेंट क्लास इंट्रोड्यूस हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन से, लुक दिस हैज बीन जॉइंड विद दिस इंडिपेंडेंट क्लास. ये मिला है द गर्ल वाज अवॉर्डेड के साथ, इसके साथ इसे ज्वाइन किया गया है. ओके, जब इसके साथ इसे ज्वाइन किया गया है इंडिपेंडेंट क्लास के साथ, तो इसके बाद ये जो डिपेंडेंट क्लास हमारा है या सबऑर्डिनेट क्लास हमारा है, व्हाट डज इट डू? ये क्या करता है? इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द गर्ल. ये हमें द गर्ल यानी एंटीसीडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. पहले क्या द गर्ल एंटीसीडेंट है? दिस इज अ नाउन हैज बीन यूज्ड बिफोर अ रिलेटिव प्रोनाउन. यस, दिस हैपेंस टू बी द एंटीसीडेंट. हाँ, ये है हमारा एंटीसीडेंट. ओके, द गर्ल एंटीसीडेंट, क्योंकि ये एक रिलेटिव प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल हुआ है, ऐसा नाउन है. ओके, अब जो ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लास है, गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द गर्ल
For example, if we read it like this, the girl was awarded. The girl was awarded. We don't know who is the girl who was awarded. The girl was awarded. लड़की को अवार्ड दिया गया, लेकिन हमें पता नहीं है ये लड़की कौन है, कौन सी लड़की, किस लड़की को अवार्ड दिया गया है. Hence ये जो पर्टिकुलर क्लास हमारे पास है, सबऑर्डिनेट क्लास, tells us about the girl. ये हमें इस एंटीसीडेंट गर्ल के बारे में बोलता है कि लड़की जिसे अवार्ड दिया गया कौन है. Who was the girl? ये लड़की कौन थी? Who saved the baby? अरे ये वो लड़की है who saved the baby, जिसने बच्चे को बचाया है. Hence this class gives us information about the girl, that is the antecedent. Now this class, this subordinate class, ये जो subordinate class हमारे पास है, also called the dependent class introduced by a relative pronoun. Now this class is called the relative class. इसी क्लास को relative class कहते हैं. Okay, fine. अब क्या है एक relative class? एक relative class एक dependent class होगा introduced by a relative pronoun, यानी ये एक subordinate class होगा, which after having been joined with an independent class, जो एक independent class के साथ ज्वाइन होने के बाद gives us information, हमें जानकारी देता है about the antecedent, antecedent के बारे में. So एक subordinate class जो एक independent class के साथ ज्वाइन होने के बाद antecedent के बारे में जानकारी देगा, such a dependent class is called a relative class. Okay, I will tell you, provide you people a little more information about the relative class. तो हमने कहा एक सबऑर्डिनेट क्लास है. ओके, सबऑर्डिनेट क्लास है, इंडिपेंडेंट क्लास के साथ ज्वाइन हुआ होता है. नेक्स्ट हमें इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटीसीडेंट देता है. एंटीसीडेंट क्या होता है? एंटीसीडेंट एक नाउन या प्रोनाउन होगा जो किसी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होता है. फाइन, मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखूंगा, B-O-Y, बॉय. दिस बॉय हैपेंस टू बी ए नाउन. ये जो बॉय, वर्ड बॉय है, ये किस वर्ड क्लास में आता है? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये कहां पे आता है? दिस इज अ नाउन, ये एक नाउन है. ख्याल रहे, अगर इस बॉय से पहले हम गुड ऐड कर देंगे, गुड बॉय, ये जो गुड है, नाउ इट रेफर्स, ये इशारा करता है बॉय की ओर. इट एड्स टू द मीनिंग ऑफ दिस नाउन, ये इस नाउन की मीनिंग में इजाफा करता है. ये गुड, लड़का, कैसा लड़का, अच्छा लड़का, मीनिंग में इजाफा करता है नाउन की. तो हर एक वर्ड जो नाउन के बारे में कुछ बोले इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव, उसे एडजेक्टिव कहते हैं. हम सब ने सुना है एक ऐसा वर्ड जो हमारे नाउन के बारे में कुछ बोले, कुछ भी बोले, उसे एडजेक्टिव कहते हैं. सो जब हमारा एक वर्ड हमारे नाउन के बारे में कुछ बोलता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं. तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक क्लास है हु सेव्ड द बेबी. ये किसके बारे में बोलता है? एंटीसीडेंट के बारे में. एंटीसीडेंट हमारा क्या होता है? नाउन होता है. तो एक वर्ड अगर हमारे नाउन के बारे में बोलेगा तो उसे एडजेक्टिव कहेंगे. लेकिन एक क्लास अगर हमारे नाउन के बारे में बोलेगा, जैसे हु सेव्ड द बेबी, द गर्ल नाउन के बारे में बोल रहा है, अगर एक क्लास हमारे नाउन के बारे में बोलेगा तो उसे भी एडजेक्टिव कहेंगे. रिमेंबर, उसे भी एडजेक्टिव कहेंगे. लेकिन यहाँ पे वर्ड था तो हमने सिर्फ एडजेक्टिव कहा. यहाँ पे क्लास है तो एडजेक्टिव क्लास कहेंगे. यानी एक ऐसा क्लास होता है जो एडजेक्टिव का काम करता है. दैट डज द जॉब ऑफ एन एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव का काम करता है. रिमेंबर, ए रिलेटिव क्लास इज आल्सो नोन एज एन एडजेक्टिव क्लास. अब रिलेटिव क्लास क्या होता है? रिलेटिव क्लास एक एडजेक्टिव क्लास होता है. रिलेटिव क्लास को एडजेक्टिव क्लास भी कहते हैं. इट हैपेंस टू बी ए सबऑर्डिनेट क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास होता है. और वी कैन से डिपेंडेंट क्लास इंट्रोड्यूस्ड बाय रिलेटिव प्रोनाउन व्हिच आफ्टर हैविंग बीन जॉइंड विद एन इंडिपेंडेंट क्लास गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटीसीडेंट. सच ए क्लास इज कॉल्ड अ रिलेटिव क्लास और एन एडजेक्टिव क्लास. ऐसे ही क्लास को रिलेटिव क्लास या एडजेक्टिव क्लास कहते हैं. तो मैं रिपीट करूंगा, रिलेटिव क्लास किसे कहते हैं? रिलेटिव क्लास एक ऐसे डिपेंडेंट क्लास को कहता है जो स्टार्ट होता हो एक रिलेटिव प्रोनाउन के साथ, उसके बाद जो मिले इंडिपेंडेंट क्लास के साथ, और इंडिपेंडेंट क्लास के साथ मिलने के बाद जो हमें जानकारी देगा हमारे एंटीसीडेंट यानी नाउन के बारे में, हेड नाउन के बारे में. ऐसे डिपेंडेंट क्लास को हम कहते हैं रिलेटिव क्लास. ख्याल रहे. तो ये था रिलेटिव क्लास. विल सून बी बैक इन